Okay. On behalf of the Cycling Federation of India and the Sports Authority of India, I welcome each and every one of you to today's e-Pathshala online teaching program. I encourage every one of you to join these programs. These are excellent programs in which you can improve your knowledge, you can learn so much more, and we have an excellent panel of faculty. They have a lot of experience, they have a lot of knowledge, and that knowledge will be shared with you. I encourage every one of you, attend the classes. This is only the second week. We have a lot more to go. We have a lot of knowledge and wisdom to come yet, a lot of technical aspects that you will definitely benefit from. Today's teaching is by Dharminder Lamba. It's an excellent teaching. It's teaching on strength with your own body weight and weight training in the gymnasium. Dharminder Lamba is being a UCI certified level 2 coach. He is a qualified physical conditioner. He has been a national level cyclist. He represented the services. His performance in cycling was excellent. He is also a national and international level commissioner. He has a wide range of knowledge in the subject, and I'm sure we all will get so much more to learn. So today, I encourage you, keep your ears open, focus on what you're listening to. You will definitely get a lot more. This program is conducted by the Cycling Federation of India and the Sports Authority of India for the benefit of all cyclists, right from grassroots level beginners to elite level cyclists. We have different programs for different levels classes and all. Dharminder Lamba and थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बहुत मेरे बारे में बताया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंक्स टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया टू गिव मी an opportunity to share my experiences and knowledge about the field that is the strength training. Today is my topic is strength training with own body weight and weight training in the gymnasium. Let's we start with the strength training. What is the strength training? Strength is the ability of human body to apply force against resistance. Means एक human body की एक क्षमता है जो रेजिस्टेंस के विरोध काम करने की क्षमता को स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसका साइकिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंस है. You can say is the ability of the neuromuscular system to produce a force. Why we need strength during the sports, or you can say in the cycling? To produce performance in cycling, a cyclist has to overcome many resistances like his own body weight. अपना उसका own body weight के against वो force generate करता है, and weight of instrument means उसका साइकिल का weight, उसके शूज का, उसके others जो इंस्ट्रूमेंट उसके साइकिल के ऊपर असिस्टेड होते हैं, and most important against the air resistance and terrain resistance. Means air resistance के खिलाफ आप एक फोर्स जनरेट करते हैं, और माउंटेन टेरेस, हिल टेरेंस जो टेरेन आते हैं उसके खिलाफ भी आप उसके अगेंस्ट यू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस. Strength is used to keep the cycle under control in many situations like the cornering, making the tight turns, braking while descending, and in the event of BMX and MTB during the control during the BMX and many descent courses and any obstacles in the MTB course.
strength is very much required in the cycling performance. Some benefit of the strength training, it's improve the overall health and wellness. It also increase the bone density. एक bone density और muscle mass strength training करने से एक human being का उसका means regular training करने से उसका बढ़ता है. And it also strengthening the joints, tendons and ligaments. आपके tendons, ligament strength होते हैं और उससे आपके joint strength होते हैं और उसी का effect आपके potential to reduce the injury. आपके इंजुरी से बचते हैं, स्पोर्ट्स इंजुरी से खासकर बचते हैं आप. And it also increase the metabolism, means it also increase the energy expenditure during in the resting and also in the repair of the tissues which are damaged during the strength training. Strength as a performance enhancer. इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट मीन्स आप जब पैडलिंग करते हैं, अगर आपकी मसल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग है, अच्छे एडप्टेड है, मीन्स आप कंडीशनड है, तो आपका साइक्लिक मूवमेंट जो एक साइकिल में वो एक इकोनॉमी मीन्स आपका कम एनर्जी एक्सपेंडिचर के ऊपर यू विल परफॉर्म में बेटर. इट आल्सो इम्प्रूव द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन. इट आल्सो इम्प्रूव द मस्कुलर स्ट्रेंथ, पीक वेलोसिटी and also delayed in the time adjustment. mean आप बहुत देर से थकते हैं. अगर आपका strength, you have the strength in your cyclic means legs, you will stay means after a long duration. Then improve the body position, mean body composition, आपका body posture आपका इससे improve होता है. And also improve the endurance capacity, आपका endurance capacity, aerobic capacity, specificity means muscular endurance. इंजुरी प्रिवेंशन ऑलरेडी हमने बताया. एंड करेक्शन इम्बैलेंसेस मींस ऑफ मसल. आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप मसल का इम्बैलेंस से बचाते हैं. मींस आपका एगोनिस्ट मसल, एंटागोनिस्ट मसल का आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर, तो आपका इम्बैलेंस होने से बचते हैं. जस्ट लाइक गिव द एग्जांपल ऑफ द हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप. Mostly we do the maximum exercise if with the quadricep exercise, then your hamstring will be means become weak. Then you have to do the balancing of both muscles, quadricep and hamstring. And psychological edge means psychological barriers. During the strength training, your body language, your body posture, you become the well body posture. Then it is also increase your self-esteem and confidence. You have to get the confidence that you can do the means against the means strength training. You have the capacity to lift the weight as you have during the process station exercise. What are the factors affecting the strength? First factor is the age. Means age is the most prime component for the strength training. आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को एज के बच्चे होते हैं, उनको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ. फर्स्ट उनको हम बॉडी अडेप्टेशन की तरफ करते हैं. उसमें ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज कराते हैं और विद द वेरी लाइट वेट. आफ्टर द एज ऑफ 13-14 we start with the light weights, not more for the maximum weight. At the age of 20 to 30 years, maximum strength can be generated. Then we can go for the maximum strength. Gender also affect the strength, means male or female. Male के अंदर जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट की वजह से उनका मसल साइज, मसल मास डेवलप होता है in comparison of female. But in the quality side, both male and female develop the same muscles. But in the quantity side, males are more stronger than the females. Then next, body position. Body position also affect the means आपका body का composition, आपके muscles का size, it also affect the strength. आपके अच्छा muscle का build up होगा, you can have the more strength. Cross section area of the muscle, आपका muscle का cross section in the length wise,
not in the circumference. आपका length wise parallel the muscle fibers अच्छे होंगे, then you are good in the muscles. Then muscle fiber composition. Already sir ने talent identification में बात किया था regarding the muscle fiber composition. Muscle classification of fiber depend on the muscles contraction of the muscles. There are basically two types of muscle fibers, means red fibers and white fibers. You can say slow twitch fiber or fast twitch fiber. Again, it also further classified type A, type 1, type 2A, type 2B. Type 2B are the means आपके जो स्प्रिंटर होते हैं जो कि बहुत फास्ट फोर्स जनरेट हैं, उनके लिए टाइप 2 फाइबर होता है. टाइप ए फाइबर वो जो कि इंटरमीडिएट फटीग होता है और जो कि स्प्रिंट टाइम ट्रायल इन द इवेंट इन द साइकिलिंग और परसूट, इस टाइप के आपके मसल फाइबर. और स्लो फाइबर मीन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस. और आज के दिन एक फैसिलिटी है मसल बायोप्सी. यू कैन गो फॉर योर टेस्टिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स, देन यू कैन select your event as per the your composition of fibers. Then elasticity of muscle. During the strength, muscle is stretched and it's come back to recoil its original position, means muscle is elastic, generate more force. Psychological factors we have already discussed, and neural factors means जब हम कोई भी strength training किसी भी movement के लिए action करते हैं तो we get the impulses, we get the command from the CNS system through the spinal cord and to the nerves. Means when you do the strength training, you can generate more motor units, and in this way you can develop the more force exercise. Before going to strength training, कुछ सेफ्टी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए. उन सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रख के उसके बाद हम आगे नेक्स्ट हम अपने ट्रेनिंग सेशन की तरफ जा सकते हैं. मींस प्रॉपर वार्म अप. ट्रेनिंग may be with on your body weight or with the weight or with other means. Before going to a station, before going to a session, you should be proper warm up. Warm up session already पिछले क्लास में हुआ है, उसी हिसाब से जस्ट नॉर्मल एक जनरल वार्म अप यू कैन गो फॉर बिफोर गोइंग टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. देन स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. मींस एक राइडर को, एक एथलीट्स को पहले बॉडी अडेप्ट करना चाहिए, उसके मसल्स और मींस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को एक ऐसे फिटनेस लेवल पे होना चाहिए. उसके बाद ही आप यू कैन गो फॉर द फर्दर स्ट्रेंथ. करेक्ट टेक्निक, हाउ टू लिफ्ट ए वेट, what how to means what is your body position, what is it, and safety equipments. Before going to the weights, you should check your collar should be tight and station to station एक safe distance होना चाहिए. And your surface also, it should be sturdy, not so slippery. Your shoes, all means safety equipment you should go check before going to the strength training. Then sequence of exercise. आपको एक्सरसाइज का सीक्वेंस सिलेक्ट करना होगा. मींस जो एक्सरसाइज आपका पहले मेजर मसल्स उनको पहले करना है और जो सिंगल मसल्स और जिन पे कम इफेक्ट पड़ता है उनको लास्ट में करना है. लोड असाइनमेंट सेम वे एंड रेस्ट एंड रिकवरी बिटवीन द मींस एक्सरसाइज बिटवीन द स्टेशंस बिटवीन द रेपिटेशंस यू शुड टेक एडुकेट रिकवरी एज पर योर ट्रेनिंग डिजाइन. ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. मींस यू शुड एक्सहेल while the strenuous point. मींस आप जब कोई strenuous एक्सरसाइज करते हैं then you should go for exhale and inhale when the easy movement. easy movement होता है जब आपको सांस लेना है और आपको जब strenuous बहुत पावर लगे उस टाइम आपको सांस छोड़ना है. one sided training, you should the one sided training means imbalance, that is imbalancing of muscles and fatigue. आप जब थके रहते हैं तो आप वेट से इन ट्रेनिंग से अवॉइड कीजिए, अदरवाइज यू कैन गो इन द इंजुरी. Then types of strength. Strength distinction according to effect of level means maximum strength, explosive strength and strength endurance. These are the basically according to effort level. और साइकिलिंग में इन सभी स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है. मींस मैक्सिमम स्ट्रेंथ, it is the ability of a human body to exert means
to exert a maximum force during any movement or exercise. Means जो strength maximum strength है जो sprint event में खासकर उसमें बहुत इसका importance है. And explosive also, this is the short time, means you generate a maximum and very fast actions for a short time. That is also required in a sprint and finishing position in all event. And strength endurance means you are performing any activity for a long duration under the condition of fatigue and in the desired quality. Means आप एक लंबे टाइम तक टाइम ट्रायल है या लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है उनके लिए दैट इज रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंडोरेंस. And strength also classified in the muscle contractions, isotonic and isometric. In the isotonic, further divided by concentric and eccentric contractions. In the isometric, what is the muscle action? During the isotonic, your muscles length is changed. It may be shortened or may be enlarged. During the concentric contractions, is the muscle size reduced, and during the eccentric, muscle size is enlarged. You can see in the first slide. See, this is the isotonic actions, and you can see the size of your bicep, means while lifting the weight with the wrist, your muscle size is shortening, means concentric contraction muscle action is going on. And in the second, you can say the means enlarge of your muscles, जो आपका muscle का size बढ़ता है, that is the contractions. This is the isometric contraction, means of your upper body. While holding or the start position in the cycling, your muscle इन्हीं मेजर मसल के ऊपर ध्यान देते हैं कि यस, these are the major muscles involved during the cycling action in the cycle. Some muscle group involved in what are the cyclic movements you can see. For the lower legs, we discussed about the muscle name which control the foot movement during the pedaling. Your thigh and hip muscles allows rider to apply force on the pedaling. Your back, abdominal, shoulder, upper bar, neck muscles contribute to stability, balance, and correct body position, and give the stability, coordination, and balance or doing the correct body position while doing the cycling action. Upper body muscles means riding off roads during the MTB or rough terrains, jumping, need to recover quick from the unpredictable of the obstacles. In the cyclocross event or in the MTB and BMX event, these upper body muscles play an important role. Forearm muscles helps in off-road riding, MTB or BMX, and also in the braking, descending and performing jump. Means आपका forearms का जो muscle है, हाथ का जो muscle है, ये आपके MTB और BMX में उनको controlling में, balancing में बहुत उसका important role है. Strength training program should include with free weight exercise. आप free weight exercise का strength training कर सकते हैं. On body weight exercise आज हम beginners के लिए उस पर ज्यादा ध्यान देंगे. On body weight exercises के बारे में बताएंगे. Then exercise with machines, multi machines आपने देखे होंगे जिम के अंदर बहुत मशीन, उनके ऊपर आप एक्सरसाइज करके आप स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं. Then circuit training, you can go for circuit training designed with some specific circuit to improve the strength. And plyometric exercise are the advanced exercise which are done by the elite athletes, not for the beginners. And exercise, running exercise with maximum speed, you can go for the short sprint on the ground. It also develops the strength or speed. And strength training with the gymnastic, means TheraBand and other apparatus, you can improve the strength. Exercise in other mediums like water, stand, hill, mountain, उससे भी आपका strength का development होता है.
Now we go with the on body weight exercises. कि on body weight exercise कैसे आइसोलेटेड वेट एक्सरसाइज या वेट विद मशीन से कैसे अच्छा है, मीन्स कैसे उसका ज्यादा मीन्स बेनिफिशियल है. ऑन बॉडी वेट एक्सरसाइज द बेस्ट फॉर बिगिनर्स और नॉइस स्पोर्ट्स पर्सन with the on body weight other than the isolated weight exercise, because इसका more these are the more functional. It improves the neuromuscular adaptations. आपका इससे improve core strength improvement होता है, balance, आप coordination, ये सब आप on body weight के, because all muscle are involved during these exercises. लेकिन अगर कोई नया पार्टिसिपेंट, नया न्यू साइक्लिस्ट कोई आता है और वो ऑलरेडी ओवरवेट है, उसको हम पहले कुछ लाइट वेट के ऊपर उसका बेसिक स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकते हैं. उसके बाद उसको ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग के ऊपर उसको ट्रेनिंग करना है. अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट ऑन ट्रेनिंग वेट पे जाएगा, उसके लिगामेंट इतने स्ट्रेंथ नहीं रहते, उसके टेंडन्स, ही कैन गेट द इंजुरी. उसको पहले थोड़ा सा स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, बेसिक स्ट्रेंथ. दैट इज गो विद द लाइट वेट. These are some exercises for on body weight, means squat exercise with on body weight. Major muscles works gluteus muscles, hamstring and quads. These are the major muscle for the cycling, जो कि साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और पावर जनरेट करती हैं ड्यूरिंग द साइकिलिंग एक्शन. आपको क्या क्या इस पे पॉइंटों पे ध्यान रखना है. फर्स्ट यू स्टैंड विद इन स्टैंडिंग पोजीशन. उसके बाद आपके जो फुट का पोजीशन है, that should be wider to the your hip width, means according the shoulder width, and toe facing slightly outwards, and your upper torso should be flat, and you should see according to your eyesight level. You can see one video, then you come to know it's a you can you keep your hand. So there are so many variations. You can do jump and squat. You can do jump, squat, thrust, side squat. Means you can do the variation, so many variation with the squat. This is the basic exercise to develop the strength of your lower limbs. While doing this exercise, see the position of the knee, 90-degree angles, and that is means parallel to the ground. Next exercise, the lunges. It also work with the glutes and quadriceps. Means आपका glutes and आपका quadricep muscle का डेवलप होता है, और ये भी आपको बहुत एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जनरेट के लिए, पावर स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करते हैं. You will see the position. First start with the आपके दोनों पैर साथ होने, start with the means put together. Then आप राइट लेग को एक्सटेंड कर सकते हैं. आपका मेन ध्यान रखना है कि आपका जो नी है वो आपको टो को आगे क्रॉस नहीं करना चाहिए, एंड इट शुड बी इन द 90 डिग्री एंगल, एंड बैक आल्सो लेग आल्सो इन द 90 डिग्री. इट्स जस्ट नियर टू द ग्राउंड. You can see the lunges actions. It is the front lunges with. In this exercise also you can do the actions. You can go with the single leg lunges. You can go with the back lunges. You can with the side movement lunges. Means you can do the variation in this exercise. Next is the box jump. It works with the quadricep, calves, and hamstring muscle, and it develops the explosive power of your lower limbs. You can initially you can start with the means small box, then increase the height, and simple you jump over the box, and you can take the support of your hands. Your upper torso should be in the straight, and chest should be means
up, and you should see in the your eyesight level. It develops the explosive strength of your lower limbs. Next exercise, the push-up exercise. It's the basic exercise, but it develops the. Excuse me, लंबा सर. Sir. सर आप थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं. थोड़ा सा ना. Okay. Okay. Thank you. Means push-up exercise is the basic. Usually do all athletes. It develops the pectoralis, your muscles of your chest, your shoulder, tricep, and your core also. और ये आपके अपर बॉडी जो उसको स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसके एंड्योरेंस को बढ़ाता है. और you can see how it's performing. Means you should go in the plank position, then you should take your body down, and your upper torso should be in the one line, your head, your hip, and your heel should be one line, body should be, you can say, the flat. Now see, what is going down, it's just near to touch to the ground, and your elbow is the 45 degree to your ribs, and upper spine position is the straight. You can add the variations in this. Then next exercise is the glute bridge. It major works on the muscles of the gluteus, hamstring, erector spines, rectus, and the adductors. It also increases the strength, flexibility, and range of motion of riding. It also reduce the injury. You can see the actions. First, you lay down on the mat and then fold your knee to just near to towards your hip, and keep your hands beside of your body for the stability, stabilizing your body. And now you can see the movement. Then raise your hips, and it should be in the straight line. Your thigh, your hip, and your shoulders should be in the straight line. And in the upper position, you hold for a while, and then take it, bring, you can repeat for the 10 to 12 seconds, then you can increase by the numbers. It improve the core strength, your gluteus muscle, and your hamstrings. That is most important muscles during the cycling. Next is the plank. It is the abdominal and back exercise के लिए है, and it also improve the main core stability. This is the plank position, and you can do the variation with the leg raise, and alternate leg raise for a while. And simple, you can do the static plank also. It improves the core strength and stability of your core muscles. Sir, excuse me, sir. Hello. हाँ सर, थोड़ा सा आप हिंदी में भी बोलेंगे ना, तो लोगों को थोड़ा मिक्स में बोलिए, हिंदी इंग्लिश ठीक है. आपकी कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूवमेंट के लिए इससे, और साइकिल में कोर स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सीधे बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. आप इसको सिंपल ले डाउन करके आप अपने एल्बो के ऊपर आपको स्टैटिक होल्ड करना है. इसका मेन जो पॉइंट है, आपकी स्पाइन शुड बी इरेक्ट, मींस आपका नेक, आपका शोल्डर, हिप एंड हील, ये सब एक लाइन में होना चाहिए. और ब्रीथिंग शुड बी नॉर्मल. आप इसमें कंटिन्यूस ब्रीथिंग ले सकते हैं, और इसमें वेरिएशन कर सकते हैं. यू कैन रेज, आप एक अल्टरनेट, आप लेग को, लेफ्ट लेग को, राइट लेग को आप उठा के इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज ब्रिज डॉग. ये भी एक कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए है. इट्स ए गुड एक्सरसाइज टू डेवलप द कोर स्ट्रेंथ, योर ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग के लिए. इसमें आपके दोनों
आप अल्टरनेट और उस पोजिशन टू डेवलप मीन्स आप मोर उस पे इफर्ट डालने के लिए। नेक्स्ट इज द सिटअप एक्सरसाइज विच वर्क्स ऑन द एब्डोमिनल्स, जो आपके पेट के ऊपर कोर उस पे असर करता है, और आपके हिप फ्लेक्सर्स पे, जो आपको एक कोर स्ट्रेंथ को, स्ट्रक्चरल कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और इसमें आप सिंपल यू कैन ले डाउन ऑन द मैट, आप मैट के ऊपर उस पे लेट जाइए। उसके बाद नी को आप होल्ड करके आप हिप की तरफ उसको लेके आके, और हाथ का पोजीशन आप चेस्ट के ऊपर रख सकते हैं और बैक ऑफ योर पीछे रख सकते हैं, और सिंपल सिटअप्स कर सकते हैं टू डेवलप द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज साइकिल क्रंचीज और रिवर्स क्रंचीज, इट वर्क्स ऑन द एब्डोमिनल्स और आपका कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव के लिए है। यू कैन सी द एक्शन, आप मैट के ऊपर सीधे लेट जाइए, उसके बाद अपने नी को फोल्ड कीजिए, हाथ आपके हेड के नीचे रख के और एल्बो अपार्ट रख के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देन आप अल्टरनेट एल्बो एंड नी को टच करके ये एक्सरसाइज आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। इसमें आप लेग रेज कर सकते हैं, बोथ लेग टच कर सकते हैं, और इसको आप 15 से 20-30 सेकंड तक आप कर सकते हैं। उसके बाद और ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। Then most powerful exercise, the burpee exercise, which works on the maximum major muscle groups, mean gluteus, hamstrings, core, tricep, and your chest also. It आपकी लोअर बॉडी का और अपर बॉडी का दोनों मसल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। यू कैन सी द एक्शन, इट्स ए पावरफुल एक्सरसाइज एंड मीन्स आपको जंप एंड स्क्वाट पोजिशन एंड योर पुशअप्स is the combination of the multi muscle movement exercise, multi joint exercise. It improves the major muscles strength. ये आपके सभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट is calf raise. Calf raise is simple exercise, but it's very vital. It play a vital role in the cycling for the pulling actions, and it also improve the your sport gluteus, quads and hamstring muscles. सिंपल आप इसमें क्वाड्स, आप किसी का स्टैटिक पॉइंट का सपोर्ट लेके, दीवार का सपोर्ट लेके आप अपने काफ रेज कर सकते हैं, और इसका रेपिटेशन आप कर सकते हैं 10 से 12-15। आप जो आपका फिटनेस लेवल बढ़ेगा तो उतना ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद द वेट्स, इसके अंदर वेट के अंदर थोड़ा सा एडवांस, इसके बाद अगर थोड़ा वेट के अंदर ज्यादा बात नहीं करेंगे, इनको बेसिक के लिए हम, क्योंकि वेट पे हम एक्सरसाइज जब इस पे अडेप्ट हो जाते हैं, आपके लिगामेंट, आपके जॉइंट्स, आप स्ट्रेसफुल अच्छी तरह से आप फिटनेस हो जाते हैं, बॉडी अडेप्ट हो जाती है, देन वी कैन गो विद द वेट। बट वेट इज वेरी नेसेसरी टू डेवलप द मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें बैक स्क्वाट, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, डेडलिफ्ट, चेस्ट प्रेस, लेग एक्सटेंशन, बारबेल रोज, एंड these are the means more for the cycling required in the cycling, जो साइकिल के अंदर जो मसल का रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल अप करती है एक्सरसाइजेज। These are the variables used in the strength training, means choice of exercise। आपको एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग में करते हैं तो आपको एक्सरसाइज का चॉइस करना है, मीन्स जो आपका मेजर मसल का एक्सरसाइज है यू गो फॉर द फर्स्ट। मीन्स आपका जैसे मेजर लेग का है तो स्क्वाट का एक्सरसाइज है या लेग प्रेस है, उसमें आप पहले कीजिए, और एक्सरसाइज है उसको आप बाद में कीजिए। देन सेम विद द ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइज, गो फॉर द मल्टी ज्वाइंट मसल्स एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट, फॉर द सिंगल मसल्स आफ्टर दैट। मीन्स आपको अगर बाइसेप ट्राइसेप का करना है तो आप लास्ट में कीजिए, पहले आप उन मसल एक्सरसाइज का सिलेक्शन कीजिए जिसमें आपका मल्टी ज्वाइंट और ज्यादा मसल का इन्वॉल्वमेंट है।
Then intensity of exercise means percentage of load that depend upon your program. क्योंकि बेसिक अगर आपका मसल बिल्डअप है तो यू कैन गो फॉर द बेसिक 40 to 60% ऑफ योर इंटेंसिटी, और आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ की तरफ जाना देन मोर देन 80, यू कैन गो फॉर द 80 to 100%. वॉल्यूम एक्सरसाइज मींस हाउ मच वेट यू लिफ्ट ड्यूरिंग द ए सेशन, कितना आप वेट उसमें कितने रेपिटेशन करते हैं, कितने सेट करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ योर एक्सरसाइज. Then recovery between the set repetition, that all depends upon, these are the variables. ये कुछ वेरिएबल मैं इसके बारे में जस्ट आपको बता रहा हूँ. ये कोचिंग प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज डिपेंड अपॉन आपकी स्पेस में क्या, ये एडवांस के लिए है, जस्ट इनको आप की ये चीजें होती है इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ. इंटेंसिटी परसेंटेज ऑफ लोड मींस लाइट 40 to 60, मीडियम 60 to 80 एंड हैवी 80 to 100% ऑफ योर 1 hour. हम जब स्टेशन पे या वेट ट्रेनिंग जिम में जब करते हैं उससे पहले हम कुछ टेस्टिंग करते हैं कि बोलते हैं कि 60% या 40% ऑफ योर इंटेंसिटी, तो उसका मीनिंग क्या है. उससे पहले जाने से पहले हमें हर एक एक्सरसाइज मीन्स फॉर ईच एंड एवरी मसल्स यू गो फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 RM मीन्स रेपिटेशन मैक्सिमम. देन यू कैन कम टू नो द योर मीन्स एबिलिटी ऑफ मीन्स that is the percentage. If you take the example of your means squat, you are doing squat of the 200 kg means 60% it becomes the 120 kg. This is the means this way 1 RM टेस्टिंग के बाद ही आप अपना परसेंटेज ऑफ लोड डिसाइड कर सकते हैं. और एक स्टेशन पे जाने से पहले इसका आपको भली भांति से आपको पहले इसका टेस्टिंग करना अनिवार्य है. स्क्वाट हमने देखा पहले, इट्स विद वेट, सेम उसमें बॉडी पोस्चर रहेगा. बस आपको वेट लिफ्टिंग में आपको कैसे वेट लिफ्ट उसको आपको ध्यान देना है. आपको आपका स्पाइन शुड बी करेक्ट, आपका अपर टोर्सो उसमें बेंड नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन ऑफ लेग ये आपको ध्यान देना है. स्क्वाट करते वक्त लोअर मीन्स आपका जो थाई का पोजीशन है इट्स पैरेलल टू द ग्राउंड आ रहा है, वो मींस 90 डिग्री एंगल पे मुड़ रहा है. आपके पोजीशन ऑफ द फुट, टो का पोजीशन स्लाइड आउटवर्ड है. और जब आप बार को पकड़ते हैं इट्स अदर मींस विदाउट वेट है, जस्ट बार से है. इसी तरह आप विद मल्टी मशीन और विद यू कैन ऐड द प्लेट्स और ऐड कर सकते हैं इसमें. नेक्स्ट एक्सरसाइज द बेंच प्रेस. ये आपके पेक्टोरल्स मसल्स के लिए मींस आपके चेस्ट एक्सरसाइज के लिए आप बेंच के ऊपर स्टैटिक ले increase the load as per your capacity सकते हैं, नंबर ऑफ सेट बढ़ा सकते हैं, और आपका नंबर ऑफ मींस आपका वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, वेट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी. Next is leg press. It's the most important exercise for the cyclist. Means it develop the quadricep muscle, hamstring, gluteus muscle. इसमें इंजुरी से बचता है. एक बिगिनर के बाद जब हैवी वेट पे जाते हैं तो सिंगल स्क्वाट की बजाय हम इसको प्रेफर करते हैं विद मशीन. इसमें आप इसके मशीन पे ऑलरेडी जो स्टैटिक बोर्ड है उस पर आप उस पर पोजिशन लीजिए, और आपका हैंड का सपोर्ट भी रहता है. पोजिशनिंग ऑफ योर फुट एज पर द योर शोल्डर विड्थ, और आपका इसी हिसाब से आप एज पर योर एबिलिटी एज पर योर लेवल यू कैन पुट द वेट. एंड आपके जो मूवमेंट है वो एक कंट्रोल वे में होते हैं, और नेवर गिव द जर्क ऑन द योर नी. आप उसको लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड पोजीशन में रखना है ताकि आपकी नी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट ना हो. This is the action of the leg press. Its major muscle is the gluteus, इस पे काम करता है, हैमस्ट्रिंग इस पे काम करता है, काफ पे भी इस पे इम्पैक्ट आता है.
Next exercise, deadlift. It works on the full body and hamstring and quadricep and glutes muscle, और also work on the trapezius, means आपका जो पुलिंग मसल है उसको भी आता है। ट्रेपेजियस मसल का एक साइकिलिंग में बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि जब स्टार्ट लेते हैं तो पुलिंग एक्शन, हैंडल पे पुलिंग एक्शन करते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द करेक्ट पोजिशंस, कैसे करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वेट लिफ्टिंग के ऊपर। डूइंग द डेड लिफ्ट, फर्स्ट वन यू कैन सी द हाइपर एक्सटेंडेड, ये करेक्ट नहीं है, बीच का न्यूट्रल मींस न्यूट्रल, आपका सीधा बैक स्पाइन पोजीशन, your head position and hip position in the line, and stress on your hip, and you can see the next rounded. This is also the means wrong way of the lifting of the weight. And see the action, you can see how they are lifting during the deadlifts. It's an advanced exercise and you should more careful while lifting, otherwise you can get the back injury. आपको इसको back injury हो सकता है, इसको आप बहुत अच्छे ट्रेंड होने के बाद इसका आप इसको एक्सरसाइज को कर सकते हैं। You can see the video. Positioning of leg means आपका position as per the shoulder width होना चाहिए। Then आपके जो बारबल को पकड़ने का पोजीशन कहाँ से पकड़ा है उसका पोजीशन, और हैंड का पोजीशन, ये सब इन पोजीशनों को ध्यान रखना है। फिर देन योर बैक का, बैक शुड बी स्ट्रेट। दिस इज द एक्शन फॉर द डेडलिफ्ट। इसमें मेजर मसल का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि एक साइकिलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The next this is the incorrect, already I shown this is the incorrect, mean rounded back, looking back, hyperextending on the top. These are the means incorrect way of the deadlift. Next the leg extension. Leg extension में आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो क्वाड्रिसेप मसल का जैसे फोर्स, जैसे साइकिलिंग में जैसे जो स्टार्ट लेते उसके बाद फोर्स जनरेट होता है, तो उसका मेजर मसल इज द क्वाड्रिसेप मसल। उसके एक्सरसाइज के लिए नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। इसमें आपको मेन ध्यान रखना है, आप वेट एज पर योर कैपेसिटी मींस एबिलिटी से आपको पुटअप करना है। आफ्टर दैट आपका नी लॉक नहीं होना चाहिए, मेन वही इसका मेन इंपॉर्टेंट है। और आप यू शुड बी स्टैटिक ऑन द सीट, मींस आपका बैक और आपका जो हिप का पोजीशन है वो एक स्टैटिक पोजीशन में रहना चाहिए, सीटेड ऑन द टेबल। यू कैन सी द एक्शन। See, you can do the 10 to 12 repetitions, और अगर आपका दैट इज द डिपेंड अपॉन द वेट कि आप किस फेज में कैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमम की तरफ कर रहे हैं तो आपके रेपिटेशन कम होंगे और रेपिटेशन बिटवीन रिकवरी आपका ज्यादा होगा। अगर आप मीन्स लो वेट पे करें तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रेपिटेशन, आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं, और उसमें आपका रिकवरी भी इनएडुकेट रहेगा, कम रहेगा, मीन्स टू डेवलप द मस्कुलर स्ट्रेंथ, उससे आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और उसका हैमस्ट्रिंग के लिए द बेस्ट एक्सरसाइज। देन टू फॉर द बैलेंसिंग ऑफ मसल, आपने पहले देखा इसका दैट इज फॉर द क्वाड्रिसेप। इसके दिस इज द क्वाड्रिसेप इज द एगोनिस्ट मसल मींस एंटागोनिस्ट मसल, इसके अपोजिट हैमस्ट्रिंग को डेवलप करने के लिए ताकि बैलेंस मसल रहे, दैट इज द लेग कर्ल। ये आपका हैमस्ट्रिंग, काफ और ग्लूटेस और क्वाड्रिसेप पे काम करता है। इसको इमीडिएट इसके बाद बैलेंसिंग ऑफ एक्सरसाइज, इसमें आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में आप इसका कर सकते हैं। इट्स ए सिंपल वन, आपको सीधा इस पे प्रोनेस पोस्ट में लेट जाना है उल्टा, और उसके ऊपर यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ हैंड, और ये मल्टी मशीन है। बाकी इस पे मेन आपका बॉडी शुड बी इन द स्टैटिक और द बेंच, आपको उठना नहीं इस पे, और कंट्रोल वे में इसको परफॉर्म करना है। यू शुड नॉट गिव द जर्क। लेग पुल एक्सरसाइज मींस
for your upper body means shoulders, latissimus dorsi means pulling muscle के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिंग एक्शन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मींस स्प्रिंटिंग इवेंट। और इस पे आप ऑलरेडी मल्टी स्टेशन है, इस पे पोस्ट आपको बेंच पे बैठना है, योर स्पाइन शुड बी इरेक्ट, और आपको अपने सामने एज पर द योर साइट आपको उसके लेवल पे आपको देखना है और इसको पंप परफॉर्म करना है। और वेट का जो ऑलरेडी मैंने बताया, जो भी आपको कैपेसिटी दैट इज योर एबिलिटी के हिसाब से क्या आपका किस उसमें उसी हिसाब से आपको वेट इसमें पुट अप करना है। यू कैन डू 10 to 12 रेपिटेशंस। योर अपर बॉडी शुड बी स्टैटिक, उसका मूवमेंट नहीं रहेगा, एंड योर बैक शुड बी स्ट्रेट फ्लैट, चेस्ट शुड बी आउट, एंड यू शुड डू इन द फुल रेंज ऑफ मोशन मीन्स आपको पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपको हैंड का मूवमेंट करना है। दिस द सुपर सेटिंग मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया इम्बैलेंसिंग ऑफ मसल्स में मीन्स वंस यू डूइंग द फॉर बाइसेप आपको ट्राइसेप के लिए करना है ताकि आपका मसल इम्बैलेंस ना हो। आपको क्वाड्रिसेप किया तो आपको हैमस्ट्रिंग के लिए करना है। इस तरह को आपको वेट ट्रेनिंग के दौरान आपको एक सेटअप करना है ताकि आपका मसल बैलेंस रहे और आपको इंजुरी से बचे आप। थैंक यू। इसके साथ ही सेशन मेरा इधर खत्म होता है। आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। थैंक यू सर। जो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अपना हैंड रेज करेगा। यस, मिस्टर सुरजीत। सुरजीत, मिस्टर अमित सिंह राजपूत। Sir, Lama sir, good morning, and Vinay sir. गुड Yes. मॉर्निंग सर, बोलिए सर। Good morning, sir. सर ये जब करते हैं तो में कोई असर नहीं होता क्या प्राइज में? डेड लिफ्ट करते समय, हैवी वेट करते समय हाइट में कोई असर है क्या? हेलो लामा सर, अभी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, अमित सिंह राजपूत होम दरगाह झारखंड। हाँ बोलिए। हैवी वेट पे जो हम लोग करते हैं उसमें वेट असर होता है या नहीं सर? विच एक्सरसाइज? डेडलिफ्ट सर, डेडलिफ्ट करते समय हमारी हाइट पे सर, उसमें हमारी हाइट जो है, हाउ लॉन्ग जो हमारी हाइट है वो मतलब उसमें कोई असर होता है या नहीं होता? मतलब वो हाइट से कोई असर नहीं होता ना? सुनो अभी डेड लिफ्ट में क्या है, ये एक एडवांस एक्सरसाइज है, नॉट फॉर द बिगिनर्स। आप जब वेट से अडेप्ट हो जाते हैं और अच्छी तरह से आपको परफेक्शन हो जाता है वेट के ऊपर, तभी आपको एक एक्सरसाइज है। और मीन्स ये एक मैक्सिमम वेट की, अगर आप जैसे गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज है, लो वेट पे जाते हैं तो इसका हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इफ यू गो फॉर द मैक्सिमल मीन्स इसेंट्रिक मीन्स मैक्सिमम से 110 130 पे भी आप जा सकते हो परसेंटेज ऑफ योर कैपेसिटी, क्योंकि जब वेट नीचे को जाता है तो आपका कैपेसिटी से ज्यादा जाता है, दैट इज इसेंट्रिक एक्शन। तो उसमें हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इट्स फॉर द इलाइट एथलीट्स और मीन्स अच्छे परफेक्ट एथलीट्स के लिए एक्सरसाइज है विद वेट, हेवी वेट। बट विद द बारबेल और विदाउट वेट यू कैन डू मीन्स द बेसिक फॉर द बिगिनर्स। Thank you so much, sir. Today training is mind blowing, sir. Thank you very much. Okay, sir. Welcome. Next is Mr. Daksh Shah. Mr. Daksh Shah. I'm audible, sir?
Yes, yes. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं अबाव 40 में खेलता हूँ और माय एज इज 52। तो मैं 9 आवर्स अ वीक प्रैक्टिस करता हूँ। तो मुझे कितने दिन वेट ट्रेनिंग करना चाहिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वीकली कितना करना चाहिए? आई एम डूइंग 8 to 10 आवर्स अ वीक एंड 5 days अ वीक। तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में कितनी बार मेरे को इन्वॉल्व करना चाहिए? आपका एज कितना बोला सर? 52। 52। सर देखो, आफ्टर द एज ऑफ 40 द स्ट्रेंथ इज डिट्राइव, मीन्स कम होता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि एवरी 10 डिकेज में 5 से 10% स्ट्रेंथ कम होता है। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो मेंटेनेंस में आपका स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा। और वीक में 2 to 3 times इज रिकमेंडेबल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नॉट मोर देन दैट। और उस पर आप लाइट वेट के ऊपर आप कर सकते हैं सर। डोंट गो फॉर मैक्सिमम एज द एज ऑफ मींस 52 आई एडवाइज। ओके, एंड सेकंड थिंग सर कि मैं जो ट्रेनिंग करता हूँ 5 days अ वीक साइकिलिंग का, तो Okay. जो ऑफ डे है उसमें मेरे को ट्रेनिंग करना है वेट ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग डे में भी मॉर्निंग में अगर साइकिलिंग कर दिया तो शाम को मेरे को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए? नहीं, दैट इज डिपेंड, आपका क्या एम क्या है ट्रेनिंग का। आई एम टेकिंग पार्ट इन अबाव 40 ग्रुप, कॉम्पिटिटिव में कर रहा हूँ। ओके ओके, मीन्स एज ए कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं रोड रेस वगैरह के लिए। हाँ, रोड रेस टाइम ट्रायल दोनों कर रहा हूँ। हाँ, तो देन सर आपको इंडोरेंस की इवेंट है तो उसमें मैक्सिमम ज्यादा स्ट्रेंथ पे जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इन द आफ्टरनून सेशन आल्सो। पर्टिकुलरली 2 सेशन आप मॉर्निंग सेशन में भी आप आउट ऑफ 5 days कभी भी आप 2 to 3 सेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ओके, यानी मेरा वर्किंग डेज में जो 5 दिन जो मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ उसमें वही वर्किंग डे में मैं शाम को ये इंक्लूड कर दूँ? नहीं, दैट इज डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग शेड्यूल कि आप नेक्स्ट, जैसे आप इवनिंग में भी कर सकते हैं अगर नेक्स्ट डे आपका लाइट हो, उसमें कन्वर्सेशन भी रहता है। आप इवनिंग में वेट ट्रेनिंग क्या, नेक्स्ट डे आपका स्पीड वर्कआउट हो सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन डिजाइन ऑफ प्रोग्राम, बट आई कैन रिकमेंड यू कैन ऐड 2 to 3 सेशन weight training session in your training program. ओके, थैंक यू। आई एम डूइंग हार्ड सेशन वंस और ट्वाइस इन अ वीक ओनली। तो बाकी का जो सेशन रहता है वो इजी गोइंग रहता है, या तो लॉन्ग एंड्योरेंस रहता है या तो बिल्कुल लाइट रहता है। 1 या 2 सेशन थोड़ा हार्ड रहता है, बाकी लाइट रहता है। तो वो लाइट वाले दिन में मैं इंक्लूड कर लूंगा। यस यस, आप इवनिंग में आप आफ्टरनून सेशन में किया, अगले दिन मॉर्निंग आपका लाइट, देन बिकॉज आपका एज आल्सो अबव 50 to 50 मींस you can go for the means not go for the maximum, up to moderate level you can do the weight training. हाँ, यानी मेरे को वेट ट्रेनिंग में लाइट वेट पे रिपीटिशन पे ज्यादा ध्यान देना है। Yes yes, up to go you can go up to 75-85% also, up to intermediate means medium. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Okay sir. Next is Mark Bhasme. Hello. Yes sir, बोलिए sir. Sir, like before the competition, like 1 day before, so these exercises till which time period we have to continue? Before 1 day can we do it, or week before we have to stop the exercises and only to concentrate on a respective game, the one which we are going to participate? Yes yes, means you told about the respective games, means जो sprint event है, short Yes. sprint event है, Yes. उसमें आप you can go for explosive training. Yeah. पिकिंग रहता है तो उसमें स्ट्रेंथ आप जा सकते हैं, नहीं कि Yeah. हैवी। Yeah, because what day before, if we do the weight training, so it affects on the thigh muscles or back. So we have experienced that. That's why I wanted. Yeah, next one is Judge Yotsana. Hello. Next one is Mukul Gurjar. Jai Joshna here. Yes, Hello yes, जी। yes yes, please speak. जी मैं तो अंडर 14 का हूँ जी।
ओके जी मेरे को आप जो भी कुछ एक्सरसाइज बोले वो सब कुछ कर पाएंगे, यानी स्कूल पे जो भी कुछ सीधा एक्सरसाइज बोल रहे हैं ना वो करूं, या आप तो बोले थे ना जी वो लेग प्रेस वो सब वो सारे एक्सरसाइज मैं भी करूं या सीधा एक्सरसाइज करूं? कैसे करूं जी? अंडर 14 देखो, फर्स्ट यू हैव टू अडेप्ट मींस एडेप्टेशन योर बॉडी। आपको एक स्ट्रेंथ के आपके लिगामेंट सबको स्ट्रेंथ एक चाहिए रिक्वायरमेंट। फर्स्ट यू कैन गो फॉर द ऑन बॉडी वेट, आफ्टर दैट you can go with the recommended means with the recommended weights under the guidance of your coach. You can go with the weight also, means you can start with the light weights, means about 40% of your ability that yes 40 to 60, but you can go with the light weight. It's not harmful because age of 14 you can start the weight training. ओके जी, थैंक यू जी। Welcome. नेक्स्ट वन मुकुल गुर्जर। हेलो। हाँ यस सर बोलिए। हेलो हेलो। हाँ यस यस प्लीज। सर मैं एक रोड राइडर हूँ सर। जिम एक हफ्ते में कितना दिन करना चाहिए? रोड मीन्स हम पहले बताया 2 to 3 सेशन इज रिकमेंडेबल सर। मोस्टली 2 सेशन फॉर द इंडोरेंस राइडर एंड 3 सेशन फॉर द स्प्रिंट एंड मीन्स पावर इवेंट के लिए रहता है। तो मोस्टली 2 सेशंस आर यू कैन इंक्लूड इन योर ट्रेनिंग डिजाइन फॉर द वेट ट्रेनिंग। और सर ट्रैक के लिए, अगर जो ट्रैक के लिए तैयारी करें तो उसमें सर का भी बहुत इवेंट है, उसमें शॉर्ट इवेंट के लिए ज्यादा एम्फेसाइज ऑन द हम पावर पे देते हैं मींस मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ऊपर। तो उसमें 3 सेशन भी होता है, 4 भी हो सकता है, 3 तो मिनिमम रहता है यार। और नहीं सर, जैसे परशूट के लिए, परशूट के लिए उसमें भी 2 to 3 सेशन इज रिकमेंडेबल। ठीक है सर। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। नेक्स्ट वन is क्षितिज बेलापुरे। हेलो सर। हाँ क्षितिज जी बोलिए। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र सर। मुझे ये पूछना था कि अभी हम लोग वीक में, आप बोल रहे थे कि वेट ट्रेनिंग करना है, तो अगर वीक में लेग वर्कआउट कितनी बार करना है? लेग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यस 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 लेग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देखो, साइकिलिंग का एक ऐसा इवेंट है उसमें लेग का ज्यादा इंपोर्टेंस है, अपर बॉडी का कम है। लेकिन फॉर द शॉर्ट इवेंट आप अगर रोड के इवेंट करते हैं तो ठीक है, बैलेंसिंग को फॉल करके एक उसमें करते हैं कि मेजर मसल आपका लेग का है। लेकिन फॉर द शॉर्ट इवेंट अपर बॉडी पावर इज रिक्वायर्ड मोर, उसमें हम बराबर करते हैं। लेकिन आपको बैलेंसिंग ऑफ इसके करके आपको, जैसे मैंने एक्सरसाइज बताया, उसमें मोस्ट ऑफ पार्ट का लोअर बॉडी का एक्सरसाइज, ऑल मेजर मसल का, हैमस्ट्रिंग, योर क्वाड्रिसेप, योर कॉफ, ग्लूटियर, इनका मेजर एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट है, लेग प्रेस है। वीक में एक बार करना ही चाहिए? एक बार नहीं सर, 2 बार तो कम से कम करना चाहिए। 2 बार करना चाहिए। यस यस यस। ओके, और एक मेरा क्वेश्चन था सर, ये आपने बोला मसल बायोप्सी जो है तो वो कहाँ पे कर सकते हैं और इंडिया में कहाँ पे होगा वो? अपने इंडिया में होता है? यस यस, आजकल ACTN3 उसका कई टेस्ट है, जेनेटिक टेस्ट है, जेनोमाइड, और बायोप्सी मसल का टेस्ट है। आई थिंक सो इसमें दिल्ली में भी होता है जो हाँ, आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट इट्स nowadays it's common. Okay, it's very costly और सर रेट का तो अभी आइडिया नहीं होगा, थोड़ा कॉस्टली तो रहता है बिकॉज इट्स, और पुणे में भी FMC वगैरह में होता है, दैट इज फॉर मींस डिफेंस पर्सन के लिए। ओके ओके, यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट वन क्षितिज श्रीश बिहार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये जैसे लेग एक्सरसाइज और अदर अपर बॉडी एक्सरसाइज है, ये दोनों एक्सरसाइज हम लोग एक ही दिन कर सकते हैं या अलग अलग रखना चाहिए? यस यस, दैट इज आल्सो डिजाइन आपका स्टेशन का कैसा है। कुछ लोग एक सिंगल मसल को सिंगल मसल को एम्फसाइज करते हैं, वो डिजाइन करते हैं यस, एक दिन स्टेशन पे ओनली फॉर लोअर बॉडी और 1 सेशन फॉर द अपर बॉडी। लेकिन आप ऐसे भी जा सकते हैं एज पर स्टेशन मींस अपर बॉडी लोअर बॉडी, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड, अगर आप मैक्सिमम की तरफ जाते हैं तो हम कम मसल को यूज करते हैं, मींस आपका लोअर बॉडी का मैक्सिमम करते हैं
दैट इज मोर एग्जॉस्टिव और मोर एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप किस तरह का करना चाहते हैं? अगर मैक्सिमम कर रहे हैं तो यू कैन सिलेक्ट मींस पर्टिकुलर सम मसल्स, उस पे आप जा सकते हैं, लोअर बॉडी का भी जा सकते हैं। सर वन मोर क्वेश्चन, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में कितना का गैप रहना चाहिए? मिनिमम 48 टू 72 आवर्स होता है रिकवरी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। हाँ यस, मिनिमम 48 तो मिनिमम चाहिए। और आप यू हैव डन, इफ अगर आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ किया हुआ है तो आपको 72 आवर्स चाहिए रिकवरी के लिए फॉर मसल्स। मतलब सर वीक में कम रेगुलर 2-3 डेज एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, दैट इज नॉट रिकमेंडेबल। आप उस पर रिकवरी प्रॉपर, तभी आपको उसका बेनिफिट है इफ यू डू टेक द एडुकेट रिकवरी। थैंक यू। नेक्स्ट वन है क्षितिज जादव। हेलो, यस आई एम ऑडिबल सर? यस प्लीज सर मेरा क्वेश्चन था कि जो स्क्वाट्स है और पुशअप्स है वो एक 16 इयर्स बॉय के लिए करना चाहिए। क्या बोले आप? जो स्क्वाट्स और पुशअप्स है एक्सरसाइज में। हेलो, हाँ यस सर जो पुशअप्स और पुशअप्स और स्क्वाट्स है वो एक 16 साल के लड़के के लिए एक टाइम में कितनी बार मैक्सिमम करना चाहिए? एक्चुअली 16 साल का तो पूरा अडल्ट हो जाता है, उसको आप यू कैन गो विद द वेट। दिस आर द फंक्शनल एक्सरसाइज, मींस आपका ओवरऑल बॉडी की फंक्शनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए है। तो दैट इज ऑन बॉडी एक्सरसाइज। आप इसका आपकी कैपेसिटी पे जैसे 10 टू 12 रिपीटेशन करते हैं, उसके सेट ज्यादा कर सकते हो, वो ज्यादा बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि 16 में मींस यू कैन डेवलप द फुल, आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ की तरफ जा सकते हो। These are the basic, but you can add in your the means preparatory phase for adaptation phase. उसमें these are the functional exercises, means आपका not the isolated exercise. These are the functional exercise. Okay sir. Yes. Thank you. The next one is Rahi Kulkarni. Yes please. Hello. Rahi Kulkarni, please ask your question. Okay. Next one is Lake Judge Egmo. Lake Judge Egmo. A very good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Lexi Sangmo and I am from Jammu Kashmir, Leh Ladakh. Yes. Sir, how can I improve my training day by day with gym equipment? Because I didn't bring my cycle with me. Because here road in Ladakh are not good. So, कौन सा exercise मेरे performance को और better बना सकते हैं? Actually, gym equipment से. Yes. Gym equipment से और मीन्स लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी मीन्स मेजर मसल को आपको ऑलरेडी, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली भी, आप ऑलरेडी दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बताया जैसे आपका लोअर बॉडी का क्या मसल का इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपके पास वहाँ पे जिम फैसिलिटी अवेलेबल है, देन यू कैन गो विद फ्री वेट आल्सो, यू कैन गो विद द मीन्स सेशन ट्रेनिंग, जैसे स्क्वाट है, लेग प्रेस है, लेग एक्सटेंशन, means these are the major exercise stations which are involved in the cycling. You can go for that, and you know your capacity ability as per you can means follow the exercise for the development, means the basic 40 to 60% is the means आपका एक लाइट वेट पे आपको मैक्सिमम करना है तो आप अब 80 एंड और आपको हैवी मीन्स 100% करना है आपके एज पर द 1 आवर मीन्स आपकी कैपेसिटी से, तो यू कैन गो फॉर द 100%, मीन्स you can do if you have the availability of the apparatus, means gym equipment, then you can do your all major muscle involved in the cycling. For the upper body you can go for the leg pulls, you can do the bench press. These are the means basic exercises. Okay sir, thank you sir. Okay, thank you. Next one is Varsya Syam.
हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। यस यस बोलिए सर। सर मैं ये पूछा था कि सर मतलब जो स्क्वाट मारते हैं वो कितना मारना चाहिए? स्क्वाट का सर दैट इज डिपेंड अपॉन योर मींस रेपिटेशन मैक्सिमम एबिलिटी। आप उसका एक बार टेस्ट कीजिए पहले स्क्वाट का, उसके बाद आप क्या परसेंटेज पे, जैसे अगर इफ यू गो फॉर 40 to 60% देन यू कैन गो फॉर 15 to 20 रेपिटेशन। अगर आपका 80% के पास है तो रेपिटेशन कम हो जाता है इसमें, हाँ मीन्स हाँ 8 to 10 हो जाता है। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं, लेकिन आप जस्ट, और जब मैक्सिमम है होती आप 100% यू कैन गो फॉर 5 to 7 आल्सो, या 3 to 5 आल्सो। दैट डिपेंड अपॉन द योर इंटेंसिटी ऑफ मीन्स लोड, कितना आपका लोड है उसी हिसाब से रेपिटेशन डिपेंड करता है। रेपिटेशन ट्रेनिंग उसी हिसाब से आपका कितना इंटेंसिटी है, क्या आपका वॉल्यूम है, कितने सेट है, क्या आपका रिकवरी है, मीन्स आपकी एबिलिटी के ऊपर है। दैट इज योर, दैट इज 1 आर्म कैपेसिटी आपका क्या है और क्या आपका ट्रेनिंग है। हाँ जैसे हाँ आप, मैंने बताया, आप अगर मैक्सिमम करते तो 5 to 7 इज द मीन्स फॉर ए रेपिटेशन इज द मीन्स रिकमेंडेबल। हाँ ओके ओके सर। और सर मतलब मैं अगर 500 स्क्वाट मारता हूँ, 100 का 5 और मतलब 100 के 5 सेट मारता हूँ, तो 500 स्क्वाट होते हैं, तो सर उसको रिकवरी होने में कितना टाइम लगता है? मीन्स 100 का करते हैं तो एक्चुअली एज पर द साइंस बोलते 3 to 5 मिनट में यू कैन गेट द कंप्लीट रिकवरी, ठीक है। लेकिन अभी आप 100 kg का बोलते हो, आपका क्या कैपेसिटी है, शायद आपका 200 कैपेसिटी है तो आपका 50% है, तो आपको 90 सेकेंड मीन्स 1 to 1.5 minute, 2 minutes is sufficient। That is not the in the kg you cannot count। You first go फिर मीन्स आपको स्पेसिफिक चेक कीजिए व्हाट इज योर एबिलिटी एंड व्हाट इज योर परसेंटेज। मीन्स अगर आपका परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा तो आपको रिकवरी ज्यादा चाहिए, और अगर आपका लोड मीन्स परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी कम रहेगा तो आपको रिकवरी कम चाहिए। इट्स ए सिंपल प्रिंसिपल। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सर। Next one is Surajit. Surajit. Good afternoon, sir. Yes, yes, please. Sir, you use the term of 1 RM, 5 RM, or 10 RM. So, what is that? How I measure that one, sir? Actually, this is the evaluation means method to check your means functional strength, कि आपका functional strength कितना है। That is for a particular muscle, means आपका quadricep का क्या, आपका कितना आपकी ability है, maximum effort। That is the 1 RM mean 1 repetition maximum, कि आप एक बार में कितना एक वेट उठा सकते हैं। 5 RM मीन्स आप 5 टाइम उठा सकते हैं। आप अगर एग्जांपल लेते हैं बेंच प्रेस का या स्क्वाट का, तो बेंच प्रेस आप इजीली आप 5 टाइम्स आप बेंच प्रेस का कोई भी वेट लेके आप उठा सकते हैं। दैट इज योर 5 RM कैपेसिटी। आप उसके बाद 6th वन आप नहीं उठा पाएंगे। ऐसे आप समझो आपने 80-60 kg 80 kg जैसे आपके जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 60 kg का शायद आप एक ही उठा पाए। पहले हम 10 से शुरू करते, धीरे धीरे 2 to 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर ऐसे एक टेस्टिंग मेथड है 1 RM। दैट इज उसी के बेस पे यू कैन मीन्स आप डिजाइन ट्रेनिंग आप कर सकते हैं कि आपका क्या उस कैपेसिटी मतलब परसेंटेज ऑफ आपका इंटेंसिटी क्या रहेगा लोड का। Okay, so how can I know that what is my best means the maximum weight? How can I push or pull? How can I know that? Yes, अभी आप, मैं यही बोला आपको एग्जांपल, जैसे मैंने लिया आपका स्क्वाट का। आप आपका क्या बॉडी वेट है? मेरा 52 है। हाँ, समझो 52 है। आपने जस्ट एक आप इजी जिसको उठा सकते हैं, समझो आपने 80 kg वेट से आपने स्टार्ट किया और आपने इजी 10 to 12 रेपिटेशन किया, ठीक है। उसके बाद आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट कीजिए। उसके बाद आप वेट को थोड़ा बढ़ाइए। शायद समझो कि आप नेक्स्ट 20 kg आपने इंक्रीज किया। इनिशियली यू कैन पुट द मोर वेट, बाद में आप धीरे धीरे कम वेट का 100 kg पे आप पता चला 5 से 7 बार इजीली आप रेपिटेशन कर पा रहे हैं। फिर आप 3 से 5 मिनट का अच्छा कंप्लीट रिकवरी लीजिए। उसके बाद अगेन यू इंक्रीज द वेट, आपने 110 वेट डाला। उसके बाद आपका एक लिमिट आएगा, शायद 120 पे आप शायद 1 या 2 बार कर पाएंगे। फिर आप थोड़ा रेस्ट करके पता चला 130 पे शायद आप 1 टाइम कर पाएंगे। मीन्स दैट इज द मीन्स आपका स्क्वाट का एबिलिटी मीन्स 130 kg इज योर 1 RM।
देन यू Okay. कैन गो फॉर द 6 to 8 वीक ट्रेनिंग, फिर Okay. आपको फिर चेंज करना है। अच्छा। यू जस्ट मीन्स आपका ट्रेनिंग सही लाइन में जा रहा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 6 to 8 के बाद आपका पता चला आपका 130 से 140 हो जाएगा, समझे? Okay. हाँ, कम नहीं होना चाहिए, उतना भी रह सकता है, किसी दैट इज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल मीन्स आपका एबिलिटी, किसी का फास्ट इंप्रूवमेंट होता है, किसी का कम, तो Okay. आपका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इट मींस ट्रेनिंग इज गोइंग इन द राइट वे। Okay. Thank ऐसे you. आप Thank सभी you, sir. मसल का टेस्टिंग करना है आपको, सभी का, लेग Okay, एक्सटेंशन sir. के लिए, लेग कर्ल के लिए, आपको बेंच प्रेस के लिए, मेजर मसल का 4-5 का जो भी है उसका आपको साइकिलिंग के लिए जरूरी है। उसी के बेस पे आपका ट्रेनिंग डिजाइन होगा। सर और एक क्वेश्चन है मेरा। सर आप बोला था जो वेट ट्रेनिंग, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज, सर्किट ट्रेनिंग, फ्री हैंड, सो ये डिजाइन कैसे होता है सर, मतलब कब ये करना एडवांस के चाहिए? लिए है, वो आपको आगे अच्छा। चलोगे तो पता लगेगा कि सर्किट ट्रेनिंग का किसका हाँ। क्या है, उसका इम्पोर्टेंस है, वो Okay. ग्रुप की ट्रेनिंग है, समझे आप? हाँ, तो आप आगे के लिए है, जस्ट बेसिक के लिए ही है। दीज आर द मीन्स वेरियस मेथड्स, आपका स्टेशन ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग वो अलग अलग है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता लगेगा। दीज आर द मेथड्स फॉर द ट्रेनिंग, डेवलप द स्ट्रेंथ। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Yeah. Next, 2 more questions. Mr. Sivan Shah from Nainital. हाँ प्लीज। हाँ, हेलो लांबा सर। सर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी एक्सरसाइज ट्रेनिंग बताया, ये एमटीबी में भी सेम लागू होता है, यूथ बॉयज कैटेगरी में, या थोड़ा इसका, या ट्रैक में और साइकिलिंग, ट्रैक में और रोड में और एमटीबी में इसका जो है फर्क आएगा अलग अलग? सर सभी इवेंट का सभी का अलग है, मींस डिमांड ऑफ स्पोर्ट्स। आपका एमटीबी में क्या क्या डिमांड है सर? एमटीबी में ज्यादा स्किल रहता है और मस्कुलर इंडोरेंस ज्यादा रहता है, उसमें एक बहुत मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जरूरत नहीं पड़ता, बहुत स्पीड इवेंट नहीं होते मैक्सिमम पे, तो आप अपर बॉडी का ज्यादा कंट्रोल रहता है उसमें, तो ऐसा एक डिजाइन रहेगा कि आप यू कैन गो फॉर द मींस 40 to 60 या 80% तक जा सकते हैं आपका बॉडी वेट के उसका एबिलिटी के हिसाब से, और अपर बॉडी का भी, खासकर फोर आर्म का, शोल्डर का, क्योंकि आपका कंट्रोलिंग एमटीबी में हैंड का बहुत इंपॉर्टेंस। सर मैं आपसे इसलिए नॉलेज लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा है, वो यूथ बॉयज कैटेगरी में एमटीबी कर रहा है, और हम नैनीताल जैसी जगह में रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा हमको गाइडेंस यहाँ पर उसकी मिल नहीं सकती है, क्योंकि ओन ट्रेनिंग हो रही है। अब ओन ट्रेनिंग में सर कितना एक्सरसाइज पे और प्रैक्टिस पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, और कौन सी एक्सरसाइजेस एमटीबी के लिए रहनी चाहिए, ये इसके बारे में आप थोड़ा गाइड करेंगे देखो, तो मैं अच्छा। स्ट्रेंथ के बारे में बता सकता हूँ। एमटीबी का आप जैसे गाइडेंस कोच से ले सकते हैं, उनका स्किल एमटीबी का थोड़ा अलग है, लेकिन एज पर स्ट्रेंथ फॉर एमटीबी के लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको जैसे इंक्लाइन बहुत लंबा आता है, या उसमें क्या रहता है, आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ जो रहता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपको बहुत जरूरी है, तो आप उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लंबे टाइम तक उसको कर सके। और थोड़ा सा जैसे मैंने बोला 80% जा सकते हैं, तो आपको फिनिशिंग वगैरह में जैसे जरूरत पड़ता है एक्सप्लोसिव का, तो उसमें आप उसका यूज होता है। आपको 100% बहुत मैक्सिमम पावर की जरूरत नहीं पड़ता, वो आपको परफॉर्मेंस को बल्क में, अगर मसल बहुत ज्यादा बल्क हो गया, क्योंकि जो एमटीबी के राइडर ज्यादा लीन थीन रहते हैं, ज्यादा उसको पावर की जरूरत नहीं पड़ती सर। थैंक यू लंबा सर, थैंक यू। Next one, Ruchika Singh. Good afternoon, sir. Ruchika Singh this side. गुड आफ्टरनून, बोलिए। Sir, firstly, I would like to thank you for such an informative session. Sir, my question is कि हमारे यहाँ पे जिम नहीं है, तो हम लोग मतलब शाम को ग्राउंड वर्क के लिए जाते हैं, so will it affect on our training, मतलब कुछ होगा उससे फायदा, या फिर वेट ट्रेनिंग? नहीं, आपके जो राइडर है वो किस चीज के, रोड के है, ट्रैक के है, किसके राइडर है? एमटीबी के है, डाउन हिल का है, उसका आपको डिपेंड उसी के ऊपर, उसी का है। अगर किस तरह के आपके राइडर है? हेलो हेलो। Yes, sir. Sorry, I was. आपके राइडर किस इवेंट के राइडर है? सर रोड। हाँ, रोड का देखो, आज के दिन स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है। विदाउट वेट ट्रेनिंग
आपको आगे कंपटीशन में जाने के मतलब आप मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आज के दिन रोड का रेस भी ऐसा नहीं, लास्ट 1 किलोमीटर दे आर राइडिंग मोर देन 60-70 स्पीड से आपको कितना, और फिनिशिंग में, और जैसे क्राइटेरियम रेस होती है रोड में भी एक स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेंथ का मीन्स पावर स्ट्रेंथ का। तो वो आप ठीक है, आप जिस एरिया में रहते हैं ऑन बॉडी आप एक लेवल तक आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको वेट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम वेट से ही आपका जो मोटर न्यूरॉन यूनिट रिक्रूट होता है वो आपको वेट का उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा। और आप 100% वेट उसके जैसे 100% तो चलो दे जाए, आपके रोड राइडर हैं जो भी, मीन्स आपको वेट का ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा। मैं आप बेसिकली यू कैन आपका एक लेवल तक आपका आप ऑन बॉडी वेट तक कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ेगा आगे वेट ट्रेनिंग का। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके सर, धर्मेंद्र सर। अच्छा, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम में कुछ चेंजेज है। कल का जो टॉपिक था वो अब फ्राइडे को होगा, तो लंबा सर आप अपना स्क्रीन स्टॉप करेंगे तो मैं कल नेक्स्ट शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। यस प्लीज। ये हमारा शेड्यूल रहेगा, और इसमें सैटरडे को एक हमारा स्पेशली क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो जिसको इसमें चांस नहीं मिला है क्वेश्चन आंसर करने, क्वेश्चन पूछने का, वो सैटरडे को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैटरडे को पूरा फुल सेशन क्वेश्चन आंसर का होगा। और आगे आने वाले हफ्तों में हम एमटीबी और न्यूट्रिशन पे भी हमारी क्लासेस चलेंगी। So those who who didn't get the chance to ask the question, you can ask on Saturday. There will be a specific session for question answer. ये शेड्यूल आप लोग नोट कर लीजिए, ये इस वीक का है हमारा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो कल का टॉपिक था वो फ्राइडे को होगा, और सैटरडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। लम्बा सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और कल का हमारा सेशन होगा कोर्स सेशन फॉर साइक्लिस्ट, और हमारे स्पीकर होंगे अनिल कुमार जो साई के कोच हैं। तो कल भी आप सेम टाइम पे क्लास अटेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।